Vishnu Shukla. Huh? Yes, sir. Uh, are you married or not? Yes, sir. Are you married? No, sir. अच्छा इंग्लिश मीडियम आपका है या हिंदी मीडियम? English medium, but I'm comfortable in bilingual also. इंटरव्यू में क्या पसंद करेंगे? English. तो your father was ADM. Yes. Where he was? So last time, actually retired 2023. So last time he was in Sitapur. Singapore. So you must have seen the services very key and clear. No. My first question to you is, you were a doctor of a civil servant. What hurt you most? Your father being civil servant. What hurt you most? That is desire that I did not be the civil servant. Actually, he was not able to give us the amount of time a normal father can give. He was always busy in his work. Even on festivals, he could not come to home. So we have to go there, and also we could not go many places to travel. He hardly used to take any holidays. So that was something when I was young, I used to complain about. But eventually, when I got to know about what kind of service he was in, then I'm more proud of him now. Some of your classmates would have been the doctor's daughter, engineer's daughters, Yes. police officer's daughter. Were they happy with their fathers? Everybody has some complaints with their parents because I think they are naive. They are children. They don't understand the real world. So everyone has the kind of same issue like time issue. So it was not actually your problem. Yes. It was almost everybody's problem. Even a businessman's daughter would have faced that problem. The complaint with the father. And still you chose civil services. You are choosing civil Yes. services. So it means that now you feel that what was that what is compulsion, not by choice. Yes. Okay. You are also better in information technology. मैं देख रहा हूँ कि I am saying that most of the candidates who are coming, they are from engineering discipline. So why to waste that much time in pursuing engineering course if you just wanted to be a civil servant? So, engineering is a professional course. So, it gives a backup option also that you can pursue later on if things don't go that well. Also, so engineering background's knowledge can also be used in administration. Given that I am from information technology and today is the era of IR 4.0 and the governance is also digital governance. So the information or knowledge that I've acquired in engineering can be also act as a multiplier in administration. So I see. So you are selected for deputy director or for deputy SP. These particularly these two disciplines. And all sorts of problem. The most foremost and most important being maintenance of law and order. No disruption in normal working life of common citizens. You have to see it. How do you think your knowledge of MIT will help in controlling a crowd? so crowd management, like sir, AI, the use of AI in drone mapping can be done using AI. Where are the areas of hotspot that can be analyzed? And by using data analysis, I can figure out where are the hotspots where situations of crowd issues can happen, and I can be well prepared in advance for that. So this is some of the areas I can.
Also, sir, in mapping of the skills of the youth and the unemployed people in my district, I can map and where the possibilities or there is a need of employment, where the labor and employer mismatch can be filled with my analysis of area. Is it possible through technology only? No, sir. Or what is the better way? Public contact in general or knowing the people through technology? So the contact can only be happen with physical. Technology can only enhance our work. It can make it more efficient. But when it comes to people contact, I think nothing can replace the physical touch. Yeah, you are right. Something can replace that. Yes. So that is possible even without having studied really. Yes, sir, it would have been possible, but I think the more technology oriented the governance has become, like in terms of handling, more of the work is now digitalized. So I think there is something where my knowledge can be useful in having information about the computer technology. Computer technology. So, in your opinion, if I understand you correctly, uh, any other knowledge, say knowledge of history, yeah, knowledge of geography, cannot be that much Yes, useful. really important. Because to know the people of your district, you need to know the history, the culture of the area, geography of the area. It is very important to do administration. So, my question is what is more important? To have that information in person, through contact, going through the area, going through your jurisdiction, or knowing it through some technology. Uh, no, sir. I think going in person is more important. And technology can only act as a multiplier. It can make things efficient for you that you don't have to write everything down. File work can be reduced, but the main work has to be by physical contact and physically being present there. That's required. That's fact. Now, my next question is supposing you have to choose between the legal position and actual requirement of the time, what would you choose? For example, I will give you an example. If you promulgate Section 144, which prohibits assembly of more than a number of people, and it is violated, then you are authorized to take action under that. And now, what do you feel that instead of taking action under law, if you reach them and persuade them and let them understand the consequences, may solve the problem instead of following the law, what would you prefer? Firstly, I will try to persuade them. I will try to make them understand the situation. And if nothing works, then only I will go for that extreme step of Section 144. 144 is already there. That is already there. The only thing is a violation. Yes, sir. The It violation is that being happens violated. when It is there is. being violated. Yes. So the human factor and human nature and the human attitude counts. Yes. Okay. As against this, supposing there is some very prominent person. He is a prominent person, no doubt about it. But at the same time, he is adopting to illegal courses or illegal activities. What would be your approach? So my approach will be that whatever is according to my duty that I will do,
given that the thing is illegal, I will not go ahead with that. I will tell that person, I would persuade that person that, sir, ma'am, what you are doing is not right, and it's not right in the law. And even if there are some negative repercussions of that, I will not deter by that. I will do whatever is required on my job, my duty, public service for. Sure. Let us see. हम विष्णु ये बताइए कि आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक कहाँ से किया है? So JSS Noida. Oh, great. तो इंफॉर्मेशन बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में क्या डिफरेंस? सर बीटेक जो कंप्यूटर साइंस में हम करते हैं उसमें हार्डवेयर के भी मतलब स्टडीज होती है कंप्यूटर हार्डवेयर की। जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बीटेक करते हैं तो उसमें हमें सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर का उस पे ज़्यादा वर्क करवाते हैं। अभी आप पहले बता रही थी तो आपने कहा था कि इट इज एरा ऑफ आईआर 4.0 या समथिंग, इज दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। तो ये तो आप जानती थी आईआर बोर्ड में हो सकता है किसी को ना पता हो, तो ये एक्सप्लेनेटरी रहे, ठीक है ना? जॉर्गन वी शुड नॉट यूज, ओके? ये आपने अपनी हॉबी में दिखाया है पेंटिंग मधुबनी। ये मधुबनी कहाँ है? सब बिहार। उसके नेबरिंग कोई बहुत हिस्टोरिकल और फेमस प्लेस हो मधुबनी के पास? मिथिला रीजन। करेक्ट है ना, सीतामढ़ी। मधुबनी पेंटिंग में क्या बनाती है? सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सर मधुबनी पेंटिंग में शेडिंग नहीं होती है। इसमें ज्योमेट्री का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और ये सिंपल कलर से की जाती है। मैं जो पेंटिंग करती हूँ सर मैं मतलब नेट पे कोई भी डालती हूँ मतलब मधुबनी पेंटिंग आइडियाज और फिर उसको देख के उसको बनाने की कोशिश करती हूँ सर। आपने मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ियाँ देखी? यस सर। साड़ियाँ देखी हैं। सर निर्मला सीतारमण जी ने शायद 2025 में उसको पहना था, दुलारी देवी ने उसको बनाया था। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना सर चाहिए इन कंटेस्ट ऑफ इंडिया? अपने देश को देखते हुए बताइए कि एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए? सर फुली प्राइवेटाइजेशन तो मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए क्योंकि एजुकेशन एक पब्लिक गुड है और गिवन हमारे यहाँ जो पॉवर्टी का रेट है, जो हमारे यहाँ एजुकेशन का स्तर है और जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है सर, तो उसके हिसाब से जो एजुकेशन है वो पब्लिक गुड ही रहनी चाहिए, वो अफोर्डेबल रहनी चाहिए, एक्सेसिबल रहनी चाहिए। अगर हम उसका प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो उसमें एक प्रॉफिट मोटिव ऐड हो जाएगा, तो जो नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए वो एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा। तो सर इसलिए प्राइवेटाइजेशन पूरी तरीके से नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से मतलब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? सर जैसे अभी कुछ स्कूल्स हैं प्राइवेट हैं और जो गवर्नमेंट का मेन मेन एरिया है सरकारी स्कूल्स जो है उनको ही और बेहतर करने की ज़रूरत है। उनकी जो फीस है वो कम है तो गरीब लोग भी और जो एपीएल या बीपीएल से आते हैं वो उसको अफोर्ड कर पाएंगे, तो सर प्राइवेटाइजेशन एक अच्छा निर्णय नहीं है। और आज के परिवेश में क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो गरीब है या चूल्हा लगाते हैं या रोटी बेचते हैं या परचून की दुकान रखते हैं उनके बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे? ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो गया। इंजीनियरिंग में सिंस यू हैव डन फ्रॉम जेएसएस अच्छा खासा फीस है, मेडिकल में जाइए तो 1-1 करोड़ की फीस है बिकॉज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट्स बहुत ज्यादा नहीं है जितने प्रोपोर्शन में बच्चे आ रहे हैं। तो एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम अपने पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा माध्यम है कि पर्सनल एफर्ट करके बिना पूंजी के हम कर सकते हैं। लेकिन अब तो नहीं लगता कि जो बच्चे
गरीब है, उसका बच्चा ठेला ही लगाए। पहले एक समय था कि जो इंटेलिजेंट हो वो आगे बढ़ता चला, किसी का भी बैकग्राउंड नहीं। लेकिन आज के परिवेश में तो बहुत डिफिकल्ट है ना। तो यू एग्री की अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए यस और अच्छी पढ़ाई की मिलनी चाहिए, करेक्ट? यस सर। ठीक। विशु जी, आप इस सोसाइटी में रहती हैं, मूवमेंट आपका होता होगा, चलती होगी, तो वीमेन की सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर आप मुतमईन है? मतलब आप ये महसूस करती हैं कि बिल्कुल ठीक है, कि कुछ और बेहतर होना चाहिए, कि महिलाओं में अभी भी असुरक्षा की भावना है? मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, यस सर क्योंकि यस। जब आप फील्ड में जाएंगे तो वहाँ हिंदी ही आपको काफी बोलनी पड़ेगी। गाँव में जाएंगे, कस्बे में, तो मेरा तो कहीं किसी में कन्वर्सेशन रहता है। तो जो मेरा प्रश्न था उसके संबंध में आपके अपने क्या विचार है? क्या आप आज भी अपने आप को आप निकलने में, जाने में, मूवमेंट में बिल्कुल फ्री महसूस करती हैं, कि आप कॉन्शियस रहती हैं? सर थोड़ा तो कॉन्शियस रहती हूँ, स्पेशली अकेले निकलने में। अभी है तो? यस सर अभी है, बट सिचुएशंस बहुत ज़्यादा बदली भी हैं। अ, जितना पहले था उतना नहीं है, बट अभी भी बहुत सारी जैसे ईव टीजिंग होती है, बैड बैड गेज होता है, ये सब चीज़ें अभी भी फेस करनी पड़ती है। इसमें कुछ विमेन एम्पावरमेंट की कुछ बातें हुई हैं, उसके संबंध में कुछ जानकारी है आपको? ये सब मिशन शक्ति यूपी गवर्नमेंट चला रही है, और एग्रीकल्चर में भी सर नमो ड्रोन दीदी है, उसमें हमको ड्रोन्स चलाने की कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है। और सर एजुकेशन में भी हमको प्रोत्साहन मिल रही है। तो ये कुछ प्रभावी हुई है कि ये केवल अभी स्कीम ही है? नहीं सर प्रभावी भी हुई हैं, जैसे लखपति दीदी है, उसमें कई यूपी के भी हैं, सर नंबर तो मुझे नहीं याद है, बट कई हमारे यूपी की भी हैं। अ, अ, मिशन शक्ति के अंदर रसोई एक मिशन रसोई नाम से, मुझे पूरा ठीक से तो नहीं याद है, बट उसमें महिलाओं को प्रोत्साहन किया जा रहा है कि वो अपना एक रेस्टोरेंट टाइप का ओपन करें, एंटरप्रेन्योरशिप उनके अंदर डेवलप हो, कैपेसिटी बिल्डिंग उसके लिए हो रही है। ये भी ग्लोबल टीचर का एक अवार्ड दिया गया है, यस किसको दिया गया है? सर मुझे नाम नहीं याद है, but मैंने पढ़ा है आपने भारत की है, कहाँ की है? सर, भारत की है। ग्लोबल भारत। आपका जॉब में वरीयता क्रम क्या है? Sorry, sir। प्रेफरेंसेस क्या है आपके? सर पहला एसडीएम है, जी। उसके बाद सर एसी जीएसटी है, उसके अच्छा। बाद ट्रेजरी ऑफिसर है, उसके बाद ठीक ठीक ठीक। पुलिस को आपने वरीयता नहीं दी? समाज में कुछ आप कर दी, टीचर्स को कुछ सिखाती आप कुछ? नहीं। चलिए खैर, कोई बात नहीं। अच्छा, आप एक चीज ये बताइए कि जैसे आप अपने होने वाले भावी हस्बैंड में क्या देखना पसंद करेंगी आप? किस तरह की आप चाहेंगी कि, क्योंकि इधर आपने देखा होगा कि सोशल डिसइंटीग्रेशन, मैरिज को लेके डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और महिला, ये दोनों पता नहीं बड़े संशय की स्थिति में है कि विवाह करें कि ना करें। ये कुछ चला है इस समय। और जैसे मैंने यहाँ के कोर्स को देखा है, पहले 2-3 कोर्स होती थी, अब 7-8 हो गई है। तो आपके संबंध में क्या नजरिया है? सर शादी जो हस्बैंड है वो वेल मैनर्ड होना चाहिए, और रिस्पेक्ट देना चाहिए उसको, दूसरों को, अपने से नीचे भी अपने से ऊपर को भी, और एक रिलेशन में एक लॉयल्टी होनी चाहिए। और अभी मतलब शादी आपको तब करनी चाहिए जब आपको लगे कि वो इंसान जिससे आप शादी कर रहे हैं वो उन पैरामीटर्स पे सही है, आपकी एक कंपैटिबिलिटी है। और शादी का जो रिलेशन है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसमें कॉम्प्रोमाइजेस भी होते हैं। तो आई थिंक जो ये कॉम्प्रोमाइज वाला जो इशू है वो आजकल जनरेशन नहीं कर पा रही है, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही अच्छा, आपने कहा कि ये पैरामीटर्स हैं इसके, है। यस सर। एग्री। तो पैरामीटर्स आप कैसे जज करेंगे?
क्या तरीका है पैरामीटर जज करने का? आप किसी से थोड़ा सा बता दो, आप किसी से भी बात करें, किसी बात वो कभी कुछ वो तो बताएगा नहीं कि मेरे क्या मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स क्या है, क्या नहीं है। तो किस तरह से आप जज करना चाहेंगे कि वो क्या तरीके हो सकते हैं कि आप कुछ कुछ समझ सकें? सर उनका जो बिहेवियर होगा लोगों के साथ, स्पेशली जो नीचे तबके के लोग हैं उनके साथ, उससे मैं उनको जज कर सकती हूँ कि वो अपने से नीचे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ उनका क्या रिलेशन है, कितनी प्राथमिकता वो अपने फैमिली मेंबर्स, अपने पेरेंट्स को देते हैं, उससे मैं उनको जज करूँगी सर। ठीक है निशु जी, सर आप ये निशु बीपी जी राम जी यस सर, के बारे में कुछ पढ़ा है? यस सर, तो इसमें सरकार ने कुछ मनरेगा में बदलाव किया, यस सर। उसको लेकर के विपक्ष बड़े आरोप लगा रहा है कि ये गलत हो गया है। तो क्या है ये पूरा विवाद वीबीजी राम जी का, और आपको क्या लगता है कि जो सरकार ने संशोधन किया है मनरेगा में वो सही है? सर इसमें ये हुआ है कि पहले जो 100 डेज़ थे, अब वो 125 डेज़ कर दिए गए हैं और इसमें जो इसके बेनिफिशियरीज़ हैं, उनको थोड़ा रैशनलाइज़ किया गया है कि जो और जो इसके तहत जो भी एसेट्स क्रिएट होते थे, उसका बेटर मॉनिटरिंग किया गया है। तो सर जो इश्यू है वो इस बात को है कि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी है लोगों को कि उनको ये स्कीम हटाई जा रही है, ये बंद की जा रही है स्कीम, क्योंकि इसका नाम चेंज हुआ है। तो इसकी वज़ह से थोड़ा-सा मिस इन्फॉर्मेशन है सोसाइटी में और बाकी सर जो इसके इश्यूज़ हैं, आई एम नॉट वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट बट मैंने इतना ही पढ़ा है सर। भारत में जो अभी बजट आया है उसमें पहली बार ऑरेंज रेवोल्यूशन के लिए बजट का कुछ एलोकेशन किया गया है। ये ऑरेंज रेवोल्यूशन क्या है? ऑरेंज रेवोल्यूशन मेनली डील करता है सर क्रिएटिव इकोनॉमी से, जैसे कि एनिमेशन है, गेमिंग है और भी जैसे सर मुंबई में इसका एक पूरा एक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस भी बन रहा है। सर लास्ट ईयर वेव समिट भी हुई थी इसकी। कंटेंट क्रिएशन हाँ, से। कंटेंट क्रिएशन को प्राथमिकता देने जा रहे हैं। अच्छा, ठीक बात है। अब ये जेंडर बजटिंग क्या होती है? आजकल बहुत चर्चा में है जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग से आप क्या समझती हैं? सर जेंडर बजटिंग में ये है कि जो टोटल बजट है, उसमें कितना एलोकेशन वुमेन रिलेटेड स्कीम्स, वुमेन रिलेटेड बेनिफिशियरीज को जा रहा है, वो उसमें उसको एक फिर वुमन बजटिंग क्यों नहीं कहते, जेंडर बजटिंग क्यों कहते हैं? जेंडर मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जेंडर तो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। सर मैंने जेंडर बजटिंग ही सुना। हाँ, तो वही तो मेरा सवाल है, क्यों? अगर आपके अनुसार जेंडर बजटिंग का मतलब है वुमेन के लिए ज्यादा एलोकेशन करना। नहीं सर, हाँ, वुमेन के लिए ज़्यादा नहीं, मतलब वुमेन और मेल दोनों में मतलब कितना किसको एलोकेट हो रहा है वो इससे बताते हैं, एस्टिमेट करते हैं। अच्छा, ठीक बात है। अब सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन प्रोजेक्ट एक नई स्कीम शुरू की है, क्या जानती है इसके बारे में? सर हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी जो एक सर जो खाने में जो उनका बहुत ज़्यादा फेमस है, उसको प्रमोट करना, उसको नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे प्रमोट करना। जैसे सर लखनऊ में जैसे अभी इसको यूनेस्को का वो भी मिला हुआ है गैस्ट्रोनॉमी में। तो जैसे आगरा का पेठा है, चलिए, आगरा का तो पेठा हो गया, लेकिन जैसे लखनऊ की बात की बिरयानी सर। तो लखनऊ में तो मुगलई कुजीन से लेकर नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन बहुत सारे कुजीन हैं। यस आप किस एक कुजीन को प्रमोट करना चाहेंगे? सर, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ, तो सर मैं बाटी चोखा होता है बाटी चोखा तो लखनऊ का है। सर, बट यहाँ भी लोग उसको पसंद करते हैं सर। पसंद तो खैर दुनिया में कोई किसी, यहाँ लोग पिज्जा भी पसंद करते हैं, तो पिज्जा को तो आप प्रमोट नहीं कर सकते। मोमोज है, चाउमीन है, सब बहुत लोग पसंद करते हैं। लखनऊ की कौन सी कुजीन है, क्या जानती है लखनऊ की कुजीन के बारे में जिसको आप प्रमोट करना चाहेंगी? वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन, क्योंकि वन कुजीन ही है, एक ही लेना है। आई थिंक कुल्फी। कुल्फी। कुल्फी प्रकाश लखनऊ की है। नहीं सर, पर प्रकाश की मशहूर कुल्फी बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस
लगभग हर शहर में एक कोई है जिसकी कुल्फी बड़ी मशहूर है। वहीं का शायद समोसा, चाय, ये पूरे भारत में एक जगह की दुकान का बड़ा मशहूर होता है। लास्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश को हम जो अवध के इलाके में रहते हैं, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब की बड़ी बात की जाती है कि अवध का जो कल्चर है, हमारा जो लखनऊ का कल्चर है, वो गंगा जमुनी तहजीब। अब लखनऊ में ना तो गंगा जी है ना जमुना जी है, फिर ये गंगा जमुनी तहजीब में तो गोमती नदी है, यहाँ तो गोमती तहजीब समझ में आती। ये गंगा जमुनी तहजीब कैसे हुई? सर, गंगा जमुनी तहजीब से मतलब ये है कि सब जो है वो एक हार्मनी में जो लोग रहते हैं, सब मतलब डिफरेंट डिफरेंट समुदाय के लोग ठीक है, इसमें कंपोजिट कल्चर तो भारत के गेस बहुत सारे इलाकों में है, तो ये गंगा जमुनी तहजीब क्यों है? सर मैं गेस कर सकती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल करिए। सर जैसे जो अवध रीजन है वो काफी बड़ा था, सिर्फ लखनऊ नहीं था, काफी बड़ा था। तो जो यमुना और गंगा का जो दोआब है, उसकी वजह से शायद इसको गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। ठीक बात है, वेरी गुड सर। ऐसा है आपका जो सेंस ऑफ ड्रेसिंग है, जो आपका पोस्चर है, जो आपका कम्युनिकेशन है, ये अप्रिशिएबल है। मेरे ख्याल से मैं हाँ सर, वेरी गुड, वेरी गुड।